नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीएस आचार्य पर। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपकी यूपीएससी तथा अन्य सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की तैयारी करवा रहे हैं दिल्ली मुखर्जी नगर से। इसी में मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम का हमारा सीरीज चल रही है, जो रोज रात को 8 बजे आपको मिलती है। इसमें आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा साउथ एशिया। साउथ एशिया हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारा प्यारा भारत है वह भी साउथ एशिया में ही है। तो टुडे वी डिस्कस अबाउट साउथ एशिया, व्हाट इज साउथ एशिया एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ साउथ एशिया ऑल्सो वी डिस्कस। लेट्स सी, दिस इज एशिया, दिस मैप इज एशिया, दिस इज रसिया, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, and this is our India. Nepal, Bhutan, Myanmar and so many countries are in Asia, but we focused only South Asian region. South Asia region you see in this slide: Afghanistan, Pakistan, India, Nepal, Bhutan, Bangladesh, Sri Lanka and Maldives also in South Asia region. If we discuss about the definition of South Asia, you should note down it. South Asia is the southern region of Asia. Simple, एशिया का सबसे दक्षिणतम स्थान क्या है? साउथ एशिया है। एंड द रीजन कंसिस्ट ऑफ द कंट्रीज ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। तो ये जो 8 कंट्री हैं, इन कंट्री से मिलकर जो एक रीजन बना, उसको एक विशेष नाम दिया गया साउथ एशिया, यानी दक्षिण एशिया। नेक्स्ट हम देखते हैं सार्क। व्हाट इज सार्क? सार्क के बारे में देखेंगे। सार्क इसके लिए एक संगठन बनाया गया, ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। उसके बारे में देखेंगे, क्या क्या देखेंगे ये हम डिस्कस करेंगे आपसे। बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि क्या है, मेंबर्स, ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य क्या क्या है, इंपोर्टेंस ऑफ सार्क फॉर इंडिया, भारत के लिए इसका क्या महत्व है, ये भी हम आज इसमें चर्चा करेंगे। एंड नेक्स्ट, चैलेंजेस यानी चुनौतियां क्या हैं, एंड वे फॉरवर्ड, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, और संभावित प्रश्न यहां से क्या बन सकते हैं, ये भी हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बैकग्राउंड एंड मेंबर्स। द आइडिया ऑफ सार्क established in 1980 or 1979 also. This idea given by Ziaul Rahman. Ziaul Rahman and Indira Gandhi was not interested in this idea at that time, but SAARC was founded by 7 states in 1985. 8 December 1985 formed SAARC and members 8 countries. The name of 8 countries: India, Pakistan, Bhutan, Bangladesh, Maldives, Nepal, Sri Lanka and Afghanistan. Afghanistan is the last country which is enter in SAARC in 2007, and we give a trick to remember the countries of SAARC. These countries, 8 countries, very easy trick. MBBS, pain, you remember this country by this trick. M for
Myanmar, Maldives. M for Maldives. B for Bangladesh, Bhutan. S for Sri Lanka. P for Pakistan. A for Afghanistan. N for India. N for Nepal. This trick is to remember the country's name, and after this you should remember another thing also, because it is also important for your one day examination and your general knowledge also. What? The capital of these 8 countries also you should remember. India capital is Delhi, Pakistan is Islamabad, Bhutan is Thimphu, Bangladesh is Dhaka, and Maldives is Male, and Nepal is Kathmandu. Sri Lanka is Jayawardhanepuram Kotte. The Jayawardhanepuram Kotte is now the capital of Sri Lanka. Before this, the Colombo is the capital of Sri Lanka. The famous cricketer Mahila Jayawardene belongs to Sri Lanka, and इसी वजह से श्रीलंका की राजधानी का नाम उसके नाम पर रखा गया है. एंड अदर लास्ट वन इज अफगानिस्तान. द कैपिटल नेम इज काबुल. You remember all the things because you are the student, and these things all teachers and all exam ask very much in the one day exam. And other some observer state or observer country also in this SAARC, and the SAARC, this discussion started in Dhaka, and we discussed that Dhaka is the capital of Bangladesh. This discussion start in Dhaka, and the headquarter of SAARC in Kathmandu. Kathmandu is the capital of Nepal. The headquarter of SAARC in Kathmandu, and Kathmandu is the capital of Nepal. Next we discuss the objectives of SAARC. What is the objective of SAARC? हम इसके उद्देश्यों की चर्चा करेंगे. अगर आप अपना कॉमन सेंस यूज करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल what is the objective of any organization. The first 2-3 common objectives like economic, political and social. 3 type of objectives remain same in every organization, and other objectives are welfares of the related countries. तो यही इसके भी रहे. सबसे पहले क्या लिख सकते हैं? इकोनॉमिकल. इकोनॉमिकल ऑब्जेक्टिव्स. इफ द 8 countries started free trade agreement, then the economical advantage they have. And after that we discussed about the political. Advantage of these countries also, and other is self reliance. सेल्फ रिलायंस मीन्स आत्मनिर्भरता उनके बीच में बनेगी खाद्यान्न के लिए, फूड सिक्योरिटी. एंड अदर थिंग इज द क्वालिटी ऑफ लाइफ, इनहेंस द क्वालिटी ऑफ लाइफ. इनहेंस
द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन स्तर को यहां पर ऊंचा करने की जरूरत है और वो ऊंचा करने के लिए प्रयासरत रहेंगे आठों देश की जो प्यूपल्स हैं उनके लिए। और क्या इसके ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं? जो सहयोगात्मक कार्य हैं उनसे क्या होगा? डेवलपमेंट होगा, विकासात्मक इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा, इंफ्रा डेवलपमेंट कैसे होगा? और दूसरा और मेन उद्देश्य क्या था इसका? काउंटर चाइना पॉलिसीज। इससे क्या होगा? चाइना की जो नीतियां हैं उनको रोका जा सकेगा, जैसे वन रोड वन बेल्ट ओबोर। और इस तरह से जो चाइना का प्रभाव इन कंट्रीज पर पड़ रहा है उसको भी भारत को काउंटर करने का एक मौका मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं इंपोर्टेंस ऑफ सार्क फॉर इंडिया। इंडिया के लिए सार्क क्यों जरूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है? इंपोर्टेंस ऑफ सार्क फॉर इंडिया, भारत के लिए सार्क का महत्व। सार्क का क्या महत्व है भारत के लिए, ये हम देखेंगे। जैसा कि हमने आपसे डिस्कस किया, सबसे पहला इसमें पॉइंट रहेगा काउंटर चाइना पॉलिसी। एंड इंडिया बिकम ए लीडर ऑफ लीडरशिप क्वालिटी। लीडरशिप डेवलपमेंट होगा। एंड अदर थिंग इज इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट प्रोसेस इंक्रीजेस फॉर इंडिया। इंडिया अपना इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी करेगा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएगा, इंक्रीज एक्सपोर्ट। एंड अदर थिंग इज सार्क प्रमोट ट्रस्ट एंड पीस। यहां पर भारत का जो उद्देश्य होगा वो अपने लिए ट्रस्ट डेवलप करेगा एंड पीस ये भी स्थापित होगा। और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो जो साउदर्न एशिया कंट्रीज हैं उनका प्रमुख नेतृत्वकर्ता के रूप में जब भारत भूमिका अपनी निभाएगा तो उससे जो भारत की साख बनेगी पूरे विश्व में वो भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। और अगर हम बात करें सार्क के लिए भारत इतना इंपॉर्टेंट इसीलिए है, लेकिन वर्तमान समय की अगर हम स्थिति की बात करें तो सार्क का अपना महत्व थोड़ा कम होता हुआ आपको दिखाई देगा। अब सार्क के स्थान कई अन्य जो संगठन, नए नए संगठन बने हैं जो वैश्विक परिस्थितियों के सामने आप देखेंगे, वो अगर हम बात करें क्वाड की या बिम्स्टेक की, वे सार्क का स्थान ले रहे हैं। रेगुलर इसकी जो है हम बात कर लेते हैं कि चुनौतियां क्या हैं। चैलेंजेस फॉर सार्क, सार्क के लिए हमारे भारत के सामने भी और अन्य सार्क कंट्रीज के सामने भी क्या चैलेंजेस हैं। तो चुनौतियों पर बात कर लेते हैं। चुनौतियां क्या हैं? चुनौतियां, ये जो चुनौतियां रहेंगी भारत की, ये कई बार सीधे सीधे प्रश्न में पूछा जाता है, तो इसलिए हम इस पर कुछ पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। तो भारत की सबसे बड़ी चुनौती है कि सभी देशों को साथ लेकर के चलना और एक ऐसी नीति बनाना जिससे कि हम अपना नेतृत्वकर्ता का रूप भी उभार सके और चाइना की जो नीतियां हैं उनको भी काउंटर कर सके। और दूसरा अगर हम देखते हैं तो सबके साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट,
FTA करना भी एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। और दूसरी चुनौती आ रही है कि इसकी रेगुलर मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, रेगुलर मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, जिससे इसका प्रभाव कम हो रहा है। द इफेक्ट ऑफ सार्क इज डिक्रीजिंग एंड द नेक्स्ट थिंग इज दैट frequency of SAARC meeting is low, and other thing is relationship between India and Pak escalated tension and conflicts. The relationship of India and Pak relationship is very conflicted. That's why the SAARC is not doing proper work. And other thing is China also influenced the Pak. That's why the situation is not good at that time. And other things we discuss the way forward. What is the conclusion of these things? Way forward यानी आगे की क्या राह हो सकती है इसके लिए। आगे की राह की अगर हम बात करें तो आगे की राह में हम इसमें यही सुधार कर सकते हैं कि भारत को इस समय जो विश्व में एक नेतृत्वकर्ता की भूमिका के रूप में उभरा है, कोविड-19 की बात हो, कोविड-19 और अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट एंड इंडिया पाक रिलेशनशिप हो। कोविड-19 में और अफगानिस्तान कॉन्फ्लिक्ट में भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है, यहां पर उसने अपनी अहम भूमिका निभाई है। और इंडिया पाक रिलेशनशिप में भी अब कुछ आपने देखा होगा, स्ट्राइक्स की गई थी, एयर स्ट्राइक वगैरह के बाद से कुछ तलखियां कम की गई हैं। इस समय घुसपैठियों पर 370 का दबाव जो दिखाया जाता था कश्मीर में, उसको हटा करके भी बॉर्डर पर सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। वहीं हम एक और ये देखते हैं कि द मेंबर्स कंट्रीज शुड expose the potential of SAARC in maintaining peace and stability in region. And other thing is that SAARC should be allowed to progress naturally, and people of South Asia who make up a quarter of world population should be offered more people to people connect. Then you should think about that कि जो सार्क कंट्रीज हैं उनको नेचुरली सारी जनता को, जो भी सार्क कंट्रीज में जो एक क्वार्टर के रूप में पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती हैं सार्क की कंट्री, सबसे ज़्यादा क्या है सार्क को अगर आप देखें, फिर से मैं एक बार आपको इसमें दिखाना चाहूँगा। ये जो सार्क की कंट्री है, यहाँ पे जो पॉपुलेशन पाई जाती है ये पूरी दुनिया के एक क्वार्टर के बराबर यानी एक चौथाई भाग के रूप में देखी जाती है। और ये पूरा जो रीजन है ये बड़ा ही समृद्धशाली रीजन है। ये मालदीव भी इसी के अंदर है। ये समृद्धशाली रीजन है, यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्पादन क्षमता है और ये पूरे वर्ल्ड के लेबर को प्रोवाइड करने वाला स्थान भी माना जाता है। पूरे वर्ल्ड में अगर लेबर कहीं से जाएगी या किसी भी वर्ल्ड में अगर आप पहुंचेंगे तो साउथ एशिया यानी सार्क की कंट्रीज की लेबर वहां पर आपको मिलेगी। तो ये भी एक रीजन है कि हम अपने जो लेबर है, लेबर रिसोर्स है, उसे स्किल्ड बनाएंगे और उनको नेचुरली हर जगह पर जो सुविधाएं प्रोवाइड करनी है, जैसे कि उनका लाइफ स्टाइल, उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसको हाई बनाएंगे, उनको स्किल्ड बनाएंगे, तो सार्क की जो स्थिति है वह अपना आप ही सुधरती चली जाएगी। तो इस तरह से हमें देखना है कि सार्क के लिए आगे की राह क्या होगी कि हम अगर वहां सार्क कंट्रीज की जो पॉपुलेशन है उसके लिए कुछ काम करेंगे, कुछ वेलफेयर स्कीम लाएंगे
तो उससे क्या होगा, सार्क अपने आप मजबूत होगा और धीरे धीरे उसकी इंपोर्टेंस बढ़ेगी। लेकिन वर्तमान समय में यहां पर देखा जा रहा है कि इसका स्थान सबसे ज्यादा लिया है बिम्स्टेक ने, और उसके बाद अब एक क्वाड नया संगठन बना है, वहां से भी उसने भी इसके जो महत्व में थोड़ी कमी लाई है। तो इस तरह से सार्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम साउथ एशिया की बात करेंगे तो सार्क का जिक्र हमको करना ही होगा। तो इसी के साथ मैं आपसे लास्ट में एक चीज जो हमारे संभावित प्रश्न है वो भी डिस्कस करना चाहूंगा कि क्या हो सकते हैं हमारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। आइए देखते हैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस। सार्क हैज बीन ए फेलियर इन प्रमोटिंग रीजनल कोऑपरेशन, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन एंड पीस बिल्डिंग इन द रीजन। क्रिटिकली एग्जामिन, यानी हमें इसका समालोचनात्मक परीक्षण करना है। क्या कि सार्क क्षेत्र में क्षेत्रीय सहयोग, संघर्ष समाधान और शांति निर्माण को बढ़ावा देने में विफल रहा है। तो ये आपसे डिस्कस किया मैंने इस लेक्चर में। आप अब इस प्रश्न को इस लेक्चर के आधार पर लिख करके चेक करा सकते हैं। आपका जो भी माध्यम हो, हिंदी हो या इंग्लिश हो, दोनों माध्यम को मैंने कवर करने की कोशिश की है, और आप जिस माध्यम में चाहें उस माध्यम में लिख करके हमें सेंड कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सार्क एंड व्हाट आर द challenges being faced by SARC in present time। At that present time आप सार्क से क्या समझते हैं? पहला आपका एक पॉइंट ये बना इसमें एक प्रश्न का हिस्सा कि आप सार्क से क्या समझते हैं और वर्तमान समय में सार्क द्वारा सामना की जाने वाली चुनौतियां क्या हैं। तो आपको ये लिखना है 150 शब्दों में, और ये ऊपर वाला प्रश्न लिखना है आपको 250 शब्दों में। और इसे लिखने के बाद आप हमें चेक करने के लिए भी भेज सकते हैं। उसके लिए हमारा एक नंबर है 9258579916। इस पर आप इसे सेंड कर सकते हैं। और पूरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह की अन्य वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।